السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم صدف عمر کا ناولٹ پڑھنے والے ہیں جس کا نام ہے آپ اپنے دام میں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، لائک بھی ضرور کیجئے گا۔ پھر چلتے ہیں ناولٹ کی طرف۔ وہ چاروں نہایت پراسرار طریقے سے کچن میں داخل ہوئیں۔ کچھ دیر کھٹر پٹر کے بعد اسی انداز سے وہ لان کی طرف کھلنے والے دروازے سے ہوتی ہوئی پچھلی طرف نکل گئیں۔ شش، آرام سے، آہٹ نہ ہونے پائے۔ سب سے آگے اوروین تھی جو اس گروہ کو لیڈ کر رہی تھی۔ وہ کیا کرنے جا رہی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ تائی کمرے کی کھڑکی حسب معمول ات کھلی تھی۔ وہ سب سابقہ انداز میں محتاط طریقے سے چلتی کھڑکی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئیں۔ ساتھیوں، منہ بند ہی رکھنا، اس کی ہدایات جاری تھی۔ باقی تینوں نے فرما برداری سے سر ہلا دیا۔ اب چاروں سکھیاں کھڑکی کے نیچے موجود اندر ہونے والی گفتگو کو کان لگا کر سننے کی کوشش کر رہی تھیں۔ یہ تائی جان کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے تو کچھ بھی صاف سنائی نہیں دے رہا۔ ماہا نے بے صبری سے سرگوشی کی۔ خاموش الو کی دم، تم چپ رہو گی تو کچھ سنائی دے گا نا؟ اینی نے سرگوشیانہ انداز میں اسے جھڑک دیا۔ تب تو اسے بہت چڑھی، بدلہ بعد میں اٹھا رکھا۔ بابا کی آواز سنائی دی جو تائی جان سے کہہ رہے تھے، آپ بڑی ہیں بھابھی، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ اور ماہا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ بابا، او ہو چپ کرو گدھی، اب کے نوین نے بھی چڑھ کر ڈانٹ دیا۔ مارے حیرت کے ماہا کی آنکھیں ابلنے لگی۔ یہ ہر وقت اس کی خوشامد کرنے والی نوین اس کو آنکھیں دکھا رہی ہے۔ بچوں، نمٹ لوں گی تم سب سے بھی۔ دل ہی دل میں انہیں مخاطب کرتی ہوئی پھر سے اندر ہونے والی گفتگو سننے کی کوشش کرنے لگی، اور اپنی ان کوششوں میں وہ اس حد تک مصروف و مشغول تھیں کہ انہیں اسرائیل کی آمد کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سنجیدہ مگر دہاڑ سے مشابہ آواز سن کر وہ چاروں لرز گئیں۔ عجلت میں اوروین بی پلٹی، مگر وہ یہ بھول گئی تھی کہ باقی سب کا ملبہ بھی اس پر تھا۔ ٹھک دھڑام کی آوازوں کے ساتھ اینی پر نوین اور عزت مآب ماہا لڑکتی ہوئی حیدر کے قدموں میں ایک لمحے کو تو حیدر بھی حیرت زدہ اور سحر زدہ رہ گیا۔ اس کی قدم بوسی کا ہی طریقہ شاید اسے بھایا نہیں تھا، سو اگلے ہی پل میں اس کا پارا جو کم ہی زمین پر ہوتا تھا آسمانوں پہ جا پہنچا۔ کیا کر رہی تھی تم سب یہاں؟ دانت پیستے ماہا کو بالکل ڈریکولا لگا۔ وہ ہم اینی نے تھوک نکل کر باقی تینوں کو مدد طلب نظروں سے دیکھا تھا، اور وہ سب ماں راستین غدارنیاں نظریں پھیر کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں۔ یقیناً پھر تم سب لوگ چھپ کر کنسوئیاں لینے کی کوشش کر رہی ہوگی۔ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو ایسی بچگانہ حرکت کرتے ہوئے۔ حیدر شروع ہو چکا تھا اور اسے چپ صرف اللہ ہی کروا سکتا تھا۔ آئندہ تم چاروں مجھے کرتی نظر نہ ہو۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ یہ آخری وارننگ ہے جو ہمیشہ ہی خطرناک ہوتی ہے۔ اس لیے فرما برداری سے سر ہلاتی وہ جلدی سے ماہا کے کمرے میں جانے لگی۔ ماہا جو کچھ دیر پہلے اس کے قدموں میں جھکی ہوئی تھی، اس دوران خفت زدہ چہرہ لیے ان کے پیچھے لپکی۔ اور تم، اسے بھاگتا دیکھ کر توپوں کا رخ اس کی جانب ہو گیا۔ کتنی دفعہ منع کیا اپنی بدحواسیوں پر قابو پاؤ، ہر وقت گرتی پڑتی رہتی ہو۔ باقی کا جملہ اس نے زیر لب بولا تھا، اور کیا بولا تھا ماہا کو پتہ تھا، اس لیے اس کا دل چاہا کہ باقی اس کو ڈانٹ پڑتا دیکھ کر تیزی سے بھاگ گئی۔ خوب اچھی طرح بے عزتی کروا کر وہ جب کمرے میں پہنچی تو میر جعفر کے رشتہ دار اس کے پیچھے پڑ گئیں۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اس کی آنکھیں پھٹ سی گئیں۔ صدمہ شدید ہوا۔ میری وجہ سے؟ صدمے سے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ہاں، کیونکہ تم ہی مری جا رہی تھی نا پاپا کا فیصلہ سننے کو۔ اور وین اس پہ چڑھ دوڑی۔ ماہا ان کی طوطا چشمی پر کچھ بول ہی نہ سکی۔ سن لیا فیصلہ، دیکھ لیا حشر، کتنی بے عزتی ہوئی ہے ہم سب کی، صرف تمہاری وجہ سے۔ تو میں ہی ہڑک تھی۔ اگر اتنی فکر مند ہو تو جاؤ، جا کر پاپا سے کہہ دو کہ میں شادی نہیں کر سکتی۔ اور وہ ان کی جذباتی تقریر میں اینی نے فلمی تڑکا لگایا تھا۔ ہاں، یہی کہو۔ خامہ خامہ اس ہٹلر کے جانشین کے ہاتھوں ہماری عزت خراب کرا دی۔ ان سب کی بک بک سنتے اس کا پارا بلند ہونے لگا۔ پتہ تھا اگر ان مطلبی سکھیوں کو کچھ الٹا سیدھا بول دیا تو ان کی مورل سپورٹ سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، سو زبردستی آنکھوں میں آنسو لانے کی کوشش کی گئی۔ تم لوگ کیسی بہنیں ہو، میری اتنی سی مدد نہیں کر سکتی؟ دل ہی دل میں انہیں گالیاں دیتے بظاہر بھررائی ہوئی آواز میں کہہ کر ان کے جذبات ابھارنے کی ناکام کوشش کی گئی،
मगर वो भी एक नंबर की ढीठ थी, बिल्कुल असर ना हुआ। और तुम तो मैंने भूल गई, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, याद करो। कैसे सबको हम्माद के रिश्ते के लिए राज़ी किया था। इसने गलती से पुराने ज़ख्मों को छेड़ दिया था, ऐनी को तो पतंगे लग गए। क्या कहा तुमने? हाँ, यानी कि तुम माहा हसन, तुमने मेरे यानी कुर्रतुलैन हसन का रिश्ता हम्माद से तय करवाया था। अरे जाओ जाओ, तुमने तो रिश्ता तोड़वाने में ज़्यादा अहम किरदार अदा किया था। हम्माद की मम्मा ने जब पूछा कि ऐनी को कुकिंग आती है तो तुमने सादतमंदी से फर बता दिया कि बिल्कुल नहीं। कितनी दफ़ा सालन जलाया है मैंने। रोटी तो मुझसे गोल बनती ही नहीं। ज़ुकाम के दिनों में मेरी बनाई चाय घर भर के लिए जुशानदे का काम करती है। बर्तन मांजने में नाखून ख़राब होते हैं। माह का एक एक लफ्ज़ याद आकर इसका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा था। माह मिनमिनाई, वो तो मैंने तुम्हारे भले के लिए ही कहा था। तुमने ही तो बताया था कि हम्माद की मम्मा नहायत तालीम याफ्ता हैं, सोशल वर्कर हैं, औरतों की आज़ादी की कायल। एनी ने इसकी बात काट दी। पर यह तो नहीं कहा था कि इन्हें बहू भी ऐसी चाहिए, मॉडर्न, निकम्मी। वो तो मैं तुम्हारी गुफ्तगू से ये समझी थी कि इन्हें मॉड बहू चाहिए होगी, इसलिए तुम्हारे भले के लिए। वो मासूमियत से बोली थी। मेरे भले? एनी चीखी और वेन ने जल्दी से बढ़कर इसे थामा। रिलैक्स रिलैक्स, इससे कह दो और वेन, मुझ पर एहसान जिताने की ज़रूरत नहीं। इसने तो मुझे बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ी थी। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि हम्माद से मेरा रिश्ता हो गया, वरना मेरी कहानी अधूरी ही रहती। इसने फिल्मी अंदाज का तड़का लगाना ज़रूरी समझा था। इसकी तकरीर न जाने और कितनी तवील होती कि नवीन ने टोक दिया। जो गुज़र गया सो गुज़र गया, अब इस बेकार की बहस को छोड़ो। इसका मकसद ऐनी को ठंडा करना था। शायद इसे गर्मी बहुत पसंद थी। क्यों छोड़ूं मैं? ज़्यादा मलका शरावत, मतलब मलका जज्बात बनने की ज़रूरत नहीं। खामोश हो जाओ अब के। और वैन ने भी बेजार होकर सख्ती से टोक दिया। वो मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ा कर रह गई। और माहा, तुम भी रिलैक्स हो जाओ, सोचते हैं तुम्हारे लिए भी कुछ। साथ में इसे भी तसल्ली दी। हाँ, ख़ुद तीनों तो खुश नसीब हैं, जो चाह पा लिया, और एक मैं। इसने ठंडी आह भर कर ख़ुद को गमज़दा साबित करने की कोशिश की थी और सर झुका लिया। कितने दिनों बाद उन्होंने इस मसले का एक शानदार हल निकाल ही लिया था और अब अमल दरामद करने से पहले तस्दीक करना चाह रही थी। हमदान लाउंज में बैठा बेब्लेड देख रहा था। इन्हिमाक देखने से ताल्लुक़ रखता था। एनी मोबाइल फ़ोन कान से लगाए सामने बरामदे में लगी वॉल ग्लास से साफ नज़र आ रही थी। और वैन किचन में, जबकि नवीन वहीं बैठी मैगज़ीन देख रही थी। हमदान, ये क्या लगा रखा है, हटाओ इसे। माहा ने चिढ़ कर रिमोट इसके हाथ से खींचने की कोशिश की। क्या है आप ही, यही तो वक्त मिलता है कार्टून देखने का। इसने रिमोट को सख्ती से बगल में दबाया। देखो, बदतमीज़ी मत करो, दो मुझे। आगे बढ़कर रिमोट इसे खींचना चाहा। अपनी झोंक में वो सोफे से फिसल गई। ओए अल्लाह! बेसाख्ता ही माँ के हलक से चीख बरामद हुई। एनी भागती हुई अंदर आई और इसके साथ ही गिलास डोल धकेल कर हैदर दाखिल हुआ। हमदान इसे उठाने के बजाय दांत निकाल रहा था। एनी को देखा, जिसकी शक्ल पर बेहवासी परेशानी थी। ऐसी मैं एनी से बदगुमान हूँ। कितनी अच्छी है एनी, मेरी वजह से घबरा गई है बेचारी। इसके दिल में बहन के लिए बेसाख्ता प्यार उमड़ा, मगर इसके पीछे हैदर को देखकर इसकी सिट्टी गुम हुई। एक तो इसकी एंट्री हमेशा गलत वक्त पर रही होती है। इसे बड़ा गुस्सा आया। एनी इसकी तरफ आने के बजाय किचन की तरफ भाग गई और वह हक्का बक्का इसे देखती रही। मोहतरमा, होश में आ जाएं और उठ जाएं। हैदर की तंजिया आवाज़ इसके कानों से टकरा कर इसे होश में ले आई। हमदान अब तक मुस्कुराए जा रहा था। खबीस, कैसे हंस रहा है। भाई नहीं है, ये तो दुश्मन है मेरा। आए कभी ये होमवर्क करवाने या जर्नल बनवाने। दिल ही दिल में से कोसते शर्मिंदा सी उठ खड़ी हुई। हमदान, बड़ी अम्मी से कहो इसकी टांगों का इलाज करवाएं, मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। हमदान से कहता वो सीधा सीढ़ियाँ चढ़ने लगा था। इसकी बात और हमदान के कहकहे इसको पतंगे लग गए। समझते क्या है ख़ुद को? मेरी टांगों के बजाय इनके दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। हाँ, बद दिमाग कहीं का। गुस्से से बुड़बड़ाई, फिर इसकी तरह मुड़ी। आना तुम खुशामदी टट्टू, बना लूँगी तुम्हारी डायग्राम्स। हमदान को धमकी देकर वो भी किचन की तरफ बढ़ गई थी, जहाँ एनी अब तक बदहवास थी। ओ फॉर वैन, मेरा दिल अभी तक बहुत तेज़ धड़क रहा है। दिल पर हाथ रखकर 70 के अशरे की हीरोइंस की तरह आंखें पटपटाती माह को जहर लगी।
मुझे बड़ा डर लग रहा है। मुझे खबर ही नहीं हुई कि हैदर आ गया है। न जाने मेरी और हम्माद की कितनी बातें सुन ली होंगी। हाय, इसे तो ये सब सख्त नापसंद है। सच, इसे देखकर तो मुझे कुछ और सूझा ही नहीं। बस दौड़ी दौड़ी अंदर आई और कहीं छुप जाऊं। ओह, तो ये थी हकीकत, माहा ने दिल में सोचा। और मैं समझी मेरी मोहब्बत में मेरी चीख सुनकर आई है। कमीनी, घटिया, अब कैसी भीगी बिल्ली बनी खड़ी है। अच्छा हुआ जो इस मलकल मौत ने इसे हम्माद के वीडियो कॉल पर अटखेलियाँ करते देख लिया। ख्यालों ही ख्यालों में इसे बेनुकत सुनाती वो इस वक्त चौंकी जब नवीन पूछ रही थी, तो तुम इतनी खोई हुई थी इस डफर हम्माद की बातों में कि उनकी गाड़ी का हॉर्न भी सुनाई नहीं दिया। डफर हम्माद, इसे तो सख्त सदमा लगा। क्यों भूल गई हो कि हैदर की गाड़ी कल से सर्विस के लिए गई हुई है? और वैन ने याद दिलाने के साथ नवीन को आंखें भी दिखाई, मगर वो बेनियाजी से कंधे उचका कर रह गई। सदमे से बेहाल फटी आंखों से नवीन को देखती एनी अब तक यकीन नहीं कर पा रही थी कि इसके हीरो जैसे स्मार्ट डैशिंग फियांसी को डफर कहा गया था। माह को अलबत्ता एक कमीनी सी खुशी हुई। यूं भी आजकल वो इन सब से एक शदीद किस्म के खुफिया हसद में मुब्तला हो रही थी। माह, तो वहाँ दरवाजे में क्यों खड़ी हो? आ जाओ भाई, हमसे कोई पर्दा थोड़ी है। नवीन की निगाह इस पर गई तो इसे भी दावत दे डाली। इस बात से बेनियाज कि एनी अब इसे कैसी कैसी सलावातें सुना रही थी। हैदर ताया अब्बू का अकलौता लगते जिगर था, घर का पहला बच्चा, सो इसके नखरे भी खूब उठाए गए थे और ये इसके बिगाड़ का सबब बने। माह की दानस्त में हुसैन ताया के बाद एहसन थे। माह के वालिद यानी माह से 1 साल बड़ी थी। इसके बाद माह और माह के 7 साल बाद हमदान था। इसी तरह हसन चाचू के भी शुरू में 2 लड़कियां थीं, महरीन जो कि माह की हम उम्र थी और नवीन जो इन दोनों से साल भर छोटी थी। फिर यासिर था नवीन से 5 साल छोटा। यूँ एक तरह से इतनी लड़कियों में अरसा तक हैदर अकलौता लड़का ही रहा, जिसकी वजह बकौल मरहूम दादी जान के लड़कियों के ढेर में वाहिद इस घर का चश्मो चिराग रहा। दादी जब तक जिंदा रहीं इसे पलकों पर बिठाए रखा। इसका मिजाज इतना सड़ियल क्यों था? हालांकि वो एनी से सिर्फ 2 साल बड़ा था, मगर सब पर इतना रोब था कि लगता घर का वाहिद बुजुर्ग वही है। और इसका ऐसा बनाने में सारा कसूर मरहूमा दादी जान का था, जिन्होंने इसको बिगाड़ने चिंगाड़ने में मकदूर भर हिस्सा डाला था। इसकी सारी ज़िंदगी माह से ना बनी। हैदर घर का पहला लड़का, ऊपर से शबाहत में दादा हजूर से मिलता। सो दादी मरहूमा निहाल हो गई। इसके बाद आने वाली लड़कियों की लाइन ने उनकी अहमियत और कीमत बढ़ा दी। दादी ने तो एक तरह से इसे गोद ही ले लिया। हर वक्त पहलू में घुसाए रखती, सीने से लगाए फखरिया कहती फिरती, ये तो सारा का सारा कमाल आफंदी की तरह है। वैसी शक्ल, वैसा ही दबदबा, मगर शौमिया किस्मत, मिजाज पूरे का पूरा दादी मरहूमा वाला। तुंक मिजाज, होसावर, अपनी मनवाने वाला, डोमिनेटिंग, ये सब माह के फरमुदात थे। माह पैदाइशी कमज़ोर बच्ची थी, हर वक्त बीमार रहती, सो चिड़चिड़ापन बहुत था। माह के पीछे पीछे उनका आंचल थामे री री करती है बच्ची दादी को एक आंख ना पाती थी। कैसी बच्ची है, हर वक्त बचता ही रहता है इसका बुगल। मजाले जो कभी से मुस्कुराता देखा हो, बीमारियों की पोट। एमी इसकी निस्बत बड़ी हंसती मुस्कुराती सेहतमंद बच्ची थी, सो वो इनके ज़ेरे अताब नहीं आई थी। हर वक्त इंजेक्शन ठुकवाते रहो, बदन में भी अब खून के बजाय दवाइयाँ दौड़ती होंगी। उनकी तनकीद तो नहीं समझती थी, मगर 2 साल कमज़ोर सी माह उनके कटीले तासुरात देखती तो सहम जाती। और अगर वो अकड़ो भी वहाँ मौजूद होता तो दांत निकाले सी चढ़ाता, कभी अड़ंगा देकर गिरा भी देता, जिस पर दादी का पारा मज़ीद हाई हो जाता और वो ऐसी डरपोक कि कभी भी चीख कर उसकी शिकायत ना कर सकी। बस घुट घुट कर रोती और दादी फरमाई जाती, इस चूहिया में बिल्कुल जान नहीं है, देखो रो भी नहीं सकती, सफ़ेद चूहिया। इनकी ये बातें मामा को भी अच्छी नहीं लगती थी, मगर उनके सामने मारे लिहाज के कुछ कह भी नहीं सकती। बिल्कुल चूहिया सी बच्ची पैदा किया तुमने नुज़हत, और ये सफ़ेद चूहिया इसकी छेड़ बन गया। और वो हैदर आफंदी, वो तो बाकायदा घड़ घड़ के नज़में बनाता, फिर बाआवाज़े बुलंद पड़ता रहता। मामा ने जब ये सूरत-ए-हाल देखी तो इसे ज़्यादातर नानों के पास छोड़े रखती। दादी की तेज़ नज़रों नुकीले जुमलों से बचने का एक ही तरीका उनके समझ में आया था, माँ भी नानों के यहाँ खुश रहती। 10 साल की उम्र तक वो ज़्यादातर नानों के पास ही रही। हालांकि दादी को इस पर भी एतराज़ था, मगर फिर
चंगी भली दादी एक मामूली सी बीमारी में चल बसी। वो इस वक्त मैट्रिक में थी और हैदर नया नया यूनिवर्सिटी गया था। दादी के जाने का इस चंगेज़ खान पर इसका बहुत असर हुआ। वो बहुत चुप चुप रहने लगा था। दादी इसके लिए सब कुछ थी। फिर सिर्फ चंद माह बाद ही माहा को यूँ लगा जैसे मरहूमा दादी तो कहीं गई ही नहीं, उनकी रूह तो हैदर अफंदी में हलूल कर गई है। दादी मरहूमा की सारी खसलतें और आदतें मोहतरम हलाकू खान में समा चुकी हैं। इसकी नुक्तांची तबीयत इसको निशाने पर लिए रखती। माहा गो के अब हर वक्त बीमार न रहती, न बचपन वाला रोना धोना बाकी रहा, मगर इसे देखकर वो ज़रूर हवास खो देती। दरअसल कसूर इसकी इन पाव पाव की आंखों का था। वो जब घूर कर इसे देखती तो इसके तोते कबूतर सब उड़ जाते और लाख बुलाने पर भी ठेंगा दिखाते, मुंह मोड़कर उड़ जाते। हालांकि ताया ताई बहुत नर्म दिल और खुश मिजाज थे। दादी के बाद ताई की बात को मुकद्दम जाना जाता। दोनों देवरानियां अपनी बड़ी जिठानी की बहुत इज्जत करती थीं। लड़कियां भी अपनी माओं की निस्बत ताई से ज़्यादा करीब थीं, जिन्हें वो अपनी बेटियों की तरह अजीज़ और प्यारी थीं। जबकि हैदर आफंदी हाउस का लाइक जीनियस बेटा, जिसका एकेडमिक रिकॉर्ड शानदार था तो शख्सियत लाजवाब, जिसने कम अरसे में बिजनेस के मैदान में झंडे गाड़ दिए थे। दौलत की कमी न थी, मगर आफंदी हाउस आज भी रिवायतों को सीने से लगाए अपनी हदूद का पास करता था। यहाँ के मकीन पढ़े लिखे रोशन ख्याल ज़रूर थे। मगर आज़ादी के नाम पर बेहयाई बदलिहाजी ना थी। बड़ों का एहतराम किया जाता था और इसी की तरबियत सबको थी। इसीलिए लड़कियां इसे झिझकती थी। बकौल एनी के उसने गुस्सा में एमफिल और तंज में पीएचडी कर रखी है। इसे लड़कियों का यूं आज़ादी के नाम पर खुलेआम घूमना पसंद ना था और इसके हुक्म का सिक्का घर में चलता भी था। दादी मरहूम का असल जानशीन जो था। वही अल्लाह, एक ख़बर सुनो सखियो। वो सब हस्बे मामूल एनी और माह के कमरे में बैठी गप्पे हाँक रही थी। रात के खाने में अभी वक्त था, सो इत्मीनान से अपनी सरगर्मियों में मशगूल थीं जब नवीन भागी आई। क्यों, क्या हुआ? खैर तो है? कहीं पापा ने मंगनी का बाज़ाब्ता ऐलान तो नहीं कर दिया? माह की रंगत उड़ गई, आवाज़ कांपने लगी। तुम्हारे सर पर तो हर वक्त यही बात सवार रहती है भाई, ये खबर तो एनी के हवाले से है। नवीन ने चिढ़कर पहले से डांटा, फिर एनी को देखा जो इस सुनकर उछल पड़ी थी। क्या हुआ? खैरियत? कहीं हम्माद की मम्मा ने एंगेजमेंट तो नहीं तोड़ दी? एनी माह से ज़्यादा बदहवास हो गई और वैन जल्दी से इसके हाथ पांव सहलाने लगी। नवीन इस 70 के अशरे की हीरोइन से चिढ़ गई। जी नहीं, अगर वो ये गलती करना चाहें भी तो हम इन्हें नहीं करने देंगे। कि तुम्हें सारी ज़िंदगी सर पर सवार रखने का मतलब एक मुसीबत खुद अपने हाथों से अपने गले डालना है। नवीन की साफ गोई परी से तो आग ही लग गई। इससे पहले कि जवाब भी हमला करती, नवीन जल्दी जल्दी बताने लगी। हम्माद भाई तशरीफ़ लाए, बनफ़से नफीस खुद, वो भी बिल्कुल अकेले। खबर थी कि बहार, जिसने एनी के चेहरे पर यहाँ से वहाँ तक फूल ही फूल खिला डाले थे। मंगनी के बाद जितनी मर्तबा भी हम्माद आया, साथ में इसकी मम्मा लाजमी होती, और आज वो अकेला आया था। सुनहरा मौका था। हम्माद इससे 2 साल सीनियर था और यूनिवर्सिटी कब का छोड़ चुका था, और यूनिवर्सिटी मिलने आने का ख़तरा भी मोल नहीं ले सकता था कि एनी ने इसे पहले इशारे, कनाइयों और बाद में वाज़े अल्फाज में कह दिया था कि माँ किसी बात को राज नहीं रख सकती। इधर मामा या हैदर की एक घुरकी, इधर इसने सब उगल देना है। सोना चाहते हुए भी मोहतात हो गया। हाय सच नवीन, सच कह रही हो? हम्माद आए हैं? इसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। शादी मर्द की कैफियत थी। जी नहीं, झूठ बोल रही हूँ। हम्माद ने डोनाल्ड ट्रंप तशरीफ़ लाए हैं। मज़ीद चिड़ी, मगर एनी ने इस गुस्ताखी पर कुछ नहीं कहा। मैं ज़रा इससे मिल आऊँ। वो एक ही जस्त में बेड से उतरी और वैन बेचारी जो अब तक इसके हाथ सहला रही थी, इसकी फुर्ती पर हक्का बक्का रह गई। कहाँ तो मोहतरमा गिरी जा रही थी और कहाँ इतनी चुस्ती। वाह, क्या आला अदाकारी की थी। अभी वो दरवाजे से निकलने भी ना पाई थी कि नवीन की आवाज़ ने रोक लिया। जनाबा, वापस तशरीफ़ ले आइए। हम्माद भाई नीचे हैदर भाई के साथ तशरीफ़ फरमा उनकी दानिश्वरी से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ताई जी नमाज़ पढ़ रही हैं, बाकी तो घर में कोई है ही नहीं। पापा के बिज़नेस पार्टनर के बेटे की शादी थी, सो बाकी लोग उधर गए हुए थे। इसका जोश झाग की तरह बैठ गया, मुँह लटकाए वापस बेड पर आकर गिर गई। हाय मेरी किस्मत। यारो कुछ करो, किसी तरह रुखे यार का दीदार करवा दो।
وہ دہائیاں دینے لگی۔ عموماً مایوسی میں وہ ایسی گاڑھی اردو بولنے لگی تھی کیونکہ اردو ادب میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ سب کی مخالفت کے باوجود کہ سخت نالائق تھی، پڑھائی سے بھاگنے والی، سو اپنی دانست میں سب سے آسان مضمون چنا تھا۔ مگر کیا پتہ تھا کہ وہ بھی دن میں تارے دکھا دے گا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے دعا کے؟ ماہا کے سینے میں ٹھنڈ سی پڑ گئی۔ خود پر پڑی تو کیسی مظلومیت کے ڈھنڈورے پیٹ رہی ہے، اس نے کمینگی سے سوچا۔ نوین، اتنا ہی بتا دو کہ لگ کیسا رہا ہے، کس قسم کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بالوں کا سٹائل کیسا ہے؟ قسم سے سخت چور لگ رہے ہیں۔ کپڑے تو انسانوں والے پہنے تھے مگر شکل البتہ غیر انسانی لگ رہی تھی، اور بال تو بالکل ہیپی سٹائل کے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ سوچ سوچ کر بتا رہی تھی۔ اینی کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں، جبکہ ماہا اور وین کو اپنی ہنسی چھپانی مشکل لگ رہی تھی۔ سچ؟ تم سچ کہہ رہی ہو؟ بھائی مجھے کیا پتا، خود ہی جا کر دیکھ لو اپنے ہمات کو۔ اس نے گویا سکھ کا سانس لیا۔ یہی تو اصل مسئلہ ہے، خود جا کر کیسے دیکھ لوں؟ ادھر ہلاکو خان بیٹھا ہے، وہ ایسا کرنے دے گا؟ اس نے بے چارگی سے کہا۔ تو کیا انہوں نے مجھے دعوت نظارہ دی تھی؟ کیا وہ نوین بی بی؟ آ کر بتاؤ اور اس کا جائزہ لو، اور جا کر قرۃ العین صاحبہ کی تسلی و تشفی کرواؤ۔ جو ہی سلام کے بعد بیٹھ کر خیریت پوچھنے لگی، فوراً آنکھیں دکھا کر اٹھا دیا کہ جاؤ جا کر امی کو بھیجو۔ ہائے ربا، مجھ پر یہ ظلم بھی ہونا تھا۔ ظالم سماج دو دلوں کو چپکے ملنے بھی نہیں دے رہا۔ ہم بے وفا ہرگز نہ تھے۔ وہ فلمی انداز میں دہائیاں دے رہی تھی۔ اس کی حالت پر طرز تو خیر کیا آنا تھا کہ پتہ تھا ڈرامہ کر رہی ہے، البتہ ایک آئیڈیا اور وین کے زرخیز ذہن میں دماغ میں پٹ سے آ گیا۔ ایک بمباسٹک آئیڈیا آیا ہے۔ بتاؤ، جلدی بتاؤ، کیا ہمات سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ وہ بے صبری اتاولی ہوئی جا رہی تھی۔ ہوں، بے صبری کہیں گی۔ ہاں، اور ماہا تمہارا کام بھی ہو سکتا ہے۔ ادھر آؤ دونوں۔ وہ دونوں اس کے قریب آ گئیں۔ ذرا دیر بعد ہی ماہا کانپتے لرزتے قدموں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں موجود تھی، جہاں حیدر سنجیدگی سے ہمات کے ساتھ مصروف گفتگو تھا۔ یا اللہ، مدد فرما، جل تو جلال تو۔ قبیل کرتی اس نے سلامتی بھیجنی چاہیے۔ السلام علیکم ہمات بھائی۔ حلق سے عجیب سی پھنسی آواز برآمد ہوئی تھی۔ حیدر کے ساتھ باتوں میں مصروف ہمات چونکا، پھر متوقع سالی کو دیکھ کر خوشگوار لہجے میں جواب دینے کے بعد اس کے آس پاس نظریں دوڑانے لگا۔ حیدر کو اسے دیکھ کر لمحے بھر کو حیرت ہوئی، مگر وہ بے نیاز بنا رہا۔ کیسی ہو ماہا؟ وہ خوش دلی سے اس کی خیریت دریافت کر رہا تھا۔ جواب دیتے ہوئے اس نے حتی الامکان حیدر کو دیکھنے سے گریز کیا تھا، مبادا اس کا اعتمادی متزلزل نہ ہو جائے۔ اور سنائیں ہمات بھائی۔ کیا سناؤں؟ ہمات بھائی کی خوش اخلاقی عروج پر تھی۔ اس کی یوں ہی اچانک نظر صرف ایک لمحے کو حیدر کی جانب ہوئی، جو بڑی خشمگین نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ بے ساختہ گڑبڑا گئی، زبان بھی غلط موقع پر پھسل گئی۔ آپ چائے لیں گے؟ یا پھندا؟ جملہ غلط موقع پر غلط بندے کو دیکھتے ہوئے نکل گیا تھا۔ صرف ایک لمحے کو حیدر کی آنکھوں میں حیرت ابھری، پھر اس کی سنجیدہ سی آواز آئی، میں چائے پی چکا ہوں، تم ہمات کے لیے ٹھنڈا لے آؤ البتہ۔ ماہا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ کیا غضب ہو گیا تھا؟ ساری خوش اخلاقی، ساری بہادری اڑنچھو ہو گئی۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور تیزی سے باہر نکلنے لگی، جب پیچھے سے وہی منحوس آواز آئی، اور ہاں، اگر امی نماز سے فارغ ہو گئی ہوں تو انہیں بھی بھیج دینا۔ مطلب تھا انہیں ہی وہ بھاگنے کسی انداز میں نکلی، مگر بیڑا غرق کوئی سارائشی گملے کا ٹھاس سے اس کے پاؤں سے ٹکرایا اور وہ لڑکھڑائی۔ انگوٹھے میں الگ درد ہونے لگا تھا۔ ہمات فکر مندی سے اس کی جانب بڑھا، مگر یہ اور بات کہ حیدر کو اسے اٹھتا دیکھ کر بادل ناخواستہ اٹھنا ہی پڑا۔ قریب جا کر ذرا سا جھکا۔ ماہا کے حواس جواب دینے لگے۔ حیدر کو اس کی جانب جاتا دیکھ کر ہمات دوبارہ بیٹھ گیا، مگر اس کا دھیان انہی کی طرف تھا۔ دفع ہو جاؤ اور مجھے دوبارہ کبھی کسی مہمان، خصوصاً اپنے مہمان کے سامنے نظر نہ ہو۔ تمیز سلیقہ نام کو نہیں تمہیں؟ دھیمے لہجے میں دانت پیستے ہوئے بول رہا تھا۔ پھر کیا تھا؟ اچانک ہی ماہا سب درد بھول بھال گئی اور دوڑ لگاتی نکلتی چلی گئی۔ اس کے انداز تو ہمات کو بھی حیرت میں ڈال دیتے۔ ہمات کب گیا؟ اینی کس سے ملاقات ہوئی کہ نہیں؟ اسے کچھ پتہ ہی چل نہ سکا۔ جب اینی کمرے میں آئی تو وہ سوتی بن گئی، مگر اینی کی بڑبڑاہٹ صاف سن رہی تھی، جو سارے گھر میں اس کو تلاش کرنے کے بعد اسے اطمینان سے سوتا دیکھ کر اس کی شان میں قصیدے پڑھتی خود بھی سو گئی۔
अगले दिन जब इसने इन्हें सारा वाक्य सुनाया तो उनका दिल अपना सर पीटने को चाहा। तुम कभी भी सुधर नहीं सकती, भला गमले से टकराने की क्या ज़रूरत थी? एनी ने गुस्सैले लहजे में कहा। मैं कोई जानबूझ के थोड़ा ही टकराई थी, वो तो अचानक ही कहीं से गमला सामने आया और मुझसे टक्कर हो गई, इसमें मेरा क्या कसूर? वो रूहान सी हो गई, अंगूठा अलग सूझा हुआ था, ऊपर से उनकी तनकीदें। जी हाँ, गमला तो खुद चल कर आया होगा, बस इसरार फरमाइश की होगी कि माहा ज़रा मुझसे टकरा जाए ठा करके। एनी के तंज पर नवीन ने इसे टोक दिया। बस करो एनी, अब इस मसले का हल सोचो। बेचारी माहा सारी ज़िंदगी कैसे कैसे सड़ियल बंदे के साथ गुजार सकती है। जो बात करे तो लगे डांट रहा है। नवीन की हमदर्दी पाकर माहा ने झट सर झुकाकर मगरमच्छ के आंसू बहाने चाहे, मगर वायर किस्मत हमेशा ऐसे वक्त पर दगा दे जाती है। हम क्या सोचें, हिम्मत तो इसे खुद करनी होगी। और वैन बोली, और आज ही से तुम्हें जो कहा जाए इस पर अमल करना होगा। अगर खुशगवार मन चाही ज़िंदगी चाहती हो तो हिम्मत पैदा करो, डर को भगाओ, सारी ज़िंदगी खुश रहोगी। वरना, एनी ने भी समझाया, बस आज से माहा एहसन तैयार हो जाए। नवीन ने ऐलान किया, दिल मजबूत रखो, इसी में तुम्हारी भलाई और तुम्हारा रोशन मुस्तकबिल पोशीदा है। वो सभी अपनी बोलियां बोलती से मजबूत कर रही थी कि एक घंटों की मगज़ खपाई के बाद माहा ने अहद किया, सब कुछ करेगी, चाहे इसकी जान ही ना चली जाए। तीनों लड़कियां बुक थीं। एनी और हम्माद एक दूसरे को पसंद करते थे और बग़ैर जालिम समाज जाए मंगनी करवा के दिन रात मोहब्बत के नगमे गा रहे थे। और वैन की बात अपने खालाजाद से तय थी, जो आजकल अमेरिका में मुकीम आला तालीम हासिल कर रहा था। रह गई नवीन तो इसके मामूने से बचपन से मांग रखा था, जो इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर थे, और इनका सपोत BBA कर रहा था। हर महीने 2 महीने बाद इस्लामाबाद से ढेरों गिफ्ट नवीन के लिए आते और हर दूसरे दिन फ़ोन पर उसकी खैरियत पूछी जाती। मंगेतर अलग इसकी बेनियाजी पर मरा जाता, क्योंकि नवीन बीबी को ओछी हरकतें जो कि हम्माद और ऐनी करते थे पसंद न थी। वो सभी नवीन की किस्मत पर बाजमात रश करती थी, और अब सिर्फ एक पीस बचा था जो अपनी तर्ज का एक ही था। और आजकल इसे ठिकाने लगाने के इंतज़ामात किए जा रहे थे, और जिसके साथ ठिकाने लगाया जा रहा था, इसके साथ ठिकाने लगने से बेहतर था कि थाने लगा दिया जाता। ताईजान किचन में मसरूफ़ थी। वो लाउंज में बैठी टीवी देखती, चिप्स नीमको खाने में मगन थी। मामा चची के साथ ग्रोसरी स्टोर गई थी। वो बड़े इंहिमाक से टीवी देख रही थी और हीरोइन की महारत और गज़ब के स्मार्टनेस पर सर धुन रही थी, जब सलाम की आवाज़ पर उछल पड़ी। खिलाफ तवक्को बेवक्त हैदर को देखकर इसके होश उड़ गए। हड़बड़ा कर इसने हाथ में पकड़े रिमोट से चैनल बदलना चाहा। गलती से वॉल्यूम का बटन पुश हो गया और आवाज़ मज़ीद ऊंची हो गई, और हैदर जो टीवी की तरफ मुतवज्जा नहीं था, मुड़कर स्क्रीन को देखने लगा। माहा ने आओ देखा ना ताओ एक ही जस्त में टीवी तक पहुंची और पावर का बटन दबा दिया। इस सारे अमल में वो हाँप गई। हैदर की इस वक्त आमद ने रंग में भंग डाल दिया था। इसकी फुर्तियाँ मुलाहिजा करते हैदर ने एक संजीदा सी नज़र इसके खिफ़त से सुर्ख चेहरे पर डाली थी, और न जाने क्यों नज़रअंदाज कर गया। अम्मी कहाँ हैं? वो पूछ रहा था, मगर किससे? माहा ने तस्दीक के लिए इर्द गिर्द देखा। आया वो इसी से मुखातिब है या किसी और से? हैदर खिलाफ मामूल बड़े तहम्मुल से इसकी हरकत देख रहा था। जब अच्छी तरह यकीन कर लेने के बाद बग़ैर किसी साब के लाहिके के इससे मुखातिब है, इसने किचन की तरफ इशारा कर दिया। वो भी खामोशी से किचन की जानिब बढ़ गया। या हैरत! माहा तो बेहोश होने वाली थी, यानी कि हैदर आफंदी ने आज तो ना कोई डांट पिलाई ना ही तंज किया। इलाही ये माजरा क्या है? तबीयत तो ठीक है ना चंगेज़ खान की? यकीनन आज तबीयत नासाज है, इसीलिए खिलाफ आदत सब कुछ कर रहे हैं। इसने वॉल क्लॉक को देखा, जहाँ 12:30 बज रहे थे, और वो तो शाम को आता था। वो इन्हीं सोचों में गलतां पेचां थे। आज यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर ली थी, क्योंकि पढ़ाई कर कर के बकौल इसका दिमाग हिल गया था, जो बकौल नवीन के पहले ही खिसका हुआ है। लिहाजा जहन को रिफ़्रेश करने के लिए आराम से घर में मज़े कर रही थी। और इसकी इस अचानक छुट्टी पर सबसे ज़्यादा खुश ऐनी थी। इसका दिल चाह रहा था भंगड़े डाले। हम्माद को भी मैसेज करके यूनिवर्सिटी आने को कह दिया था। माहा, ताईजान की आवाज़ पर वो ख्यालों से चौंकी और किचन की तरफ चली आई। जी ताईजान। बेटा जानू, हैदर की शर्ट प्रेस कर दो। उन्होंने प्यार से दरख्वास्त की। काम वाली भी नज़र नहीं आ रही थी, न जाने कहाँ थी। क्या मैं?
اس کے فرشتے کوچ کرنے لگے. جتنا وہ اس سے دور بھاگنا چاہتی تھی اتنا ہی اس کے متھے لگنا پڑتا تھا. لیکن تائی جان، ان کے کپڑوں کو کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہی تو ہیں. وہ ہر قیمت پر حیدر کے کام سے جان چھڑانا چاہتی تھی. تائی ہلکا سا مسکرائی. دراصل حیدر کو ضروری کام سے اسلام آباد جانا ہے. کہہ تو رہا ہے کہ رات تک آ جائے گا، مگر تم پھر بھی اس سے پوچھ کر احتیاطاً 2-1 سوٹ پیک کر دو. مسالہ بھونتے تائی نے ازلی نرم لہجے میں بتایا. چاروں ناچار جانا ہی پڑا. وہ آج کے منحوس دن کو کوسنے لگی کہ کیوں چھٹی کی اور مفت کی مصیبت مول لے لی. دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی. حیدر موبائل پر کسی سے باتوں میں مصروف تھا. شاید ابھی نہا کر نکلا تھا. تولیہ گردن کے گرد لپٹا ہوا تھا اور بال بھی سلجھے ہوئے نہیں تھے. باتیں کرتے کرتے اس نے گردن گھما کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. تائی جان نے کہا ہے کہ آپ کی شرٹ استری کر دوں. اس نے اپنی آمد کا مقصد بیان کر دیا اور اب منتظر تھی. حیدر نے انگلی سے وارڈروب کی طرف اشارہ کر دیا. وہ ذرا جھجکتی اس کے وارڈروب کی طرف آئی. کھول کر دیکھا. کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کون سی شرٹ نکالے. ویسے یہ تو ماننے والی بات تھی کہ اتنی آرگنائزڈ وارڈروب تو ان لڑکیوں کی بھی نہیں تھی. واہ جناب، سلیقہ مند ہے. سراہنا تو بنتا تھا. حیدر گو کے باتیں کر رہا تھا، دھیان اسی طرف تھا. اس کی الجھن محسوس کرتے اس نے فون ذرا سا کان سے ہٹا کر اس کی مشکل آسان کر دی. وائٹ والی کالرڈ شرٹ پریس کر دو. اس نے شرٹ نکال لی. وہ فون بند کر کے بالکنی میں شاید تولیہ پھیلانے چلا گیا. احتیاط سے اس کی شرٹ پریس کر کے وہ کمرے میں لائی تو وہ کہیں نظر نہ آیا. ہیں یہ کہاں چلے گئے؟ اس نے سوچا. پھر کھسکنے لگی. نگاہ سامنے رکھے سی ڈیز ریک پر پڑی. ٹھٹک کر رک گئی. اوہ تو یہ مزے ہیں جناب کے. یقیناً نورا فتح نرگس کے ڈانس کی. دل ہی دل میں سے کمینی سی خوشی ہونے لگی. بڑے پارسا بنتے ہیں اور اندر سے کیا ہیں. وہ انہیں الٹنے پلٹنے کی نیت سے ریک تک پہنچی. پیچھے سے حیدر کی آواز آئی. یا وحشت! وہ اچھل پڑی. یہ کہاں سے برآمد ہوئے ہیں؟ حالانکہ دیکھ لیا تھا کہ ڈریسنگ سے آمد ہوئی ہے. جاؤ، اب کھڑی کیوں ہو؟ طوطا چشمے کی حد کرتا اس کی گیٹ لاسٹ کا سگنل دیتی آنکھیں اور تاثرات پر ماہا کے گال بے عزتی کے احساس سے تپ اٹھے. اس نے خون خوار نظر اس بدتمیز پر ڈال لی جو اب شرٹ کے کفس بند کر رہا تھا اور غصے سے کمرے سے نکل گئی. المینٹ بدتمیز. دل ہی دل میں اس القابات سے نوازتی نیچے آئی. جہاں دونوں خواتین تشریف لا چکی تھی. چچی نے اس کے پھولے چہرے کو دیکھا تو پوچھنے لگی. کچھ نہیں چچی جان، بس کسی کا خیال آ گیا تھا تو آگ لگ گئی. خیر ہو بھائی، ایسی کون سی ہستی ہے جس کا خیال بھی جلا دیتا ہے؟ پھر تو سردی میں خوب یاد کرنا تاکہ آگ تاپ سکو. انہوں نے شریر انداز میں مشورہ دیا. وہ بڑی زندہ دل تھی. مسکرا پڑی. مشورے کا شکریہ، عمل کروں گی. یہ بتائیں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ کیا کیا خریدا ہے؟ ماما بھی فریش ہو کر آ گیا اور وہ ان کی لائی گئی اشیاء دیکھنے لگی. ان سب کے آنے پہ سارا قصہ گوشو گزار کیا گیا تو اسے تسلی دینے لگی. ویسے ماہا یار، تم بہت ڈرپوک ہو. تم بھی سنا دیتی موصوف کو، ذرا پتہ چلتا ہے انہیں کہ بے عزت ہو کر کیسا لگتا ہے. نوید نے مشورہ دیا. اور نہیں تو کیا، موصوف بہت ہی اونچی شے سمجھتے ہیں خود کو. احسان فراموش کہیں کہ اینی کو بھی بہن کی بے عزتی بری لگی. میں سنا دیتی تو مجھے جواباً کیا کچھ برداشت کرنا پڑتا. اگر اتنی ہمت ہے تم لوگ کیوں نہیں کہہ دیتی؟ خواہ مجھے الٹے سیدھے مشورے دینے کی ضرورت نہیں. ایک تو تم سے ہمدردی کر رہے ہیں اور تم ہو الٹا ناراض ہو رہی ہو. بہن کی محبت سب بھول بھال گئی. اینی برا مان گئی. ویسے ماہا، تم کو یقین ہے کہ وہ سی ڈیز ایسی ویسی تھی؟ مطلب؟ اور وین تو کسی اور ہی سوچ میں تھی. 100%. اس نے بڑے یقین سے کہا. ہو سکتا ہے وہ اسلامی درس کی ہو. تمہیں غلط فہمی ہوئی ہو. اور وین کو یقین نہیں آ رہا تھا. دراصل حیدر کا ٹیسٹ ایسا نہیں تھا ناچ گانے دیکھنے والا. اچھا، درس کی سی ڈیز کو کوئی اتنا لپیٹ لپاٹ کے رکھتا ہے بھلا؟ یقیناً ایسی ویسی ہوں گی. مطلب کیا ہے تمہارا؟ اگر اتنی لپیٹ کر رکھی ہوئی تھی تو تمہیں نظر کیسے آ گئی؟ نوین نے بھی طنز کیا. مت کرو یقین. دوسروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت. یہاں وہ والا معاملہ ہے. اس کا یقین پختہ تھا. اور وین، 2 کپ چائے بنا کر ہمدان کے ہاتھ بھیج دو. ملکہ موت کی آواز پر وہ سب بے اختیار پلٹی تھیں. وہ کچن کے دروازے پر کھڑا تھا. اس کے گھمبیر تاثرات دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا کہ موصوف کیا کچھ سن چکے ہیں. آپ حیدر بھائی، آپ کب آئے؟
होश पहले एनी को आया। हक लाते हुए पूछा क्योंकि आखिरी मुसद्दिका इत्तला के मुताबिक तो मौसूफ टेक ऑफ कर चुके थे। मैं गया कब था? प्लीज़ 2 कप चाय। इसी अंदाज में कहता हूँ मुड़ गया। हैं ये कैसे? माह को तो लग रहा था कि इसके हवा शायद साथ छोड़ गए थे। सब इसे गुस्सा से देखने लगी। न जाने कब आए हों, क्या कुछ सुना हो? माह तेरी तो खैर नहीं। नवीन को इससे अलबत्ता हमदर्दी हो रही थी और इसे अपने गले में फांसी का फंदा साफ नजर आ रहा था। अपनी जवां मर्गी पर अब इसे इस पर रिक्कत तारी हो रही थी। एक ज़रूरी दोस्त के आ जाने की वजह से इसका जाना डिले हो गया था। वो इसके साथ कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा था। 4 बजे वो इस्लामाबाद के लिए निकल गया। सबके बहलाने और समझाने पर वो भी मुतमईन हो गई थी। यकीनन इसने कुछ नहीं सुना था। सो रात को वो सब कॉलोनी की वॉक पर निकल गई। समंदरी ठंडी हवाएं अटखेलियाँ करती मूड खुशगवार कर गई। वॉक करते वो सब मेन रोड तक निकल आई। आइसक्रीम पार्लर से एनी ने सबको इनकी मनपसंद आइसक्रीम खिलाई। फिर गपशप करती वो इत्मीनान से घर आई और लाउंज में हैदर को देखकर साकित हो गई। आज का दिन ही ख़राब था। जो बार बार सारे अंदाजे गलत हो रहे थे। डलते डलते क्लॉक की जानिब निगाह की 12 बज चुके थे। वो खुद हमदान और यासिर को भी साथ लेकर नहीं गई थी, बल्कि ज़बरदस्ती डांट कर इन्हें घर में बिठा दिया था। और हैदर को तफरीह पर कोई एतराज़ ना था, मगर यूँ इन सबका इतनी रात गए अकेले घूमना पसंद नहीं था। हैदर ने तो खैर सिर्फ नज़रों से ही वार्निंग दी थी, मगर मम्मा और चाचू ने तो खूब डांटा। हमदान और यासिर दांतों की नुमाइश करते सारे सूरत हाल से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। क्या इन दोनों मासूमों को कैसे ज़बरदस्ती घर पर छोड़ दिया गया था? आखिरकार ताया और ताई की मुदाखलत से इन्हें रिहाई नसीब हुई और उन्होंने शुक्र का कलमा पढ़ते अपने ठिकानों का रुख किया। चची जी लाउंज में कपड़े फैलाई बैठी थी। ताई और मामा ही मौजूद थी। ये सूट मुझे अच्छे लगे थे तो मैंने ख़रीद लिए। देखिए भाभी, अच्छे हैं ना? वो आज शॉपिंग करके आई थी। दोनों ख़वातीन कपड़ों को हाथों में उठाए जांच रही थी। बहुत अच्छे हैं और ख़ूबसूरत भी। और वैन के लिए हैं? ताई ने पूछा। जी भाभी। भाई साहब आप शादी पर इसरार कर रहे हैं। सप्ताह अमेरिका से आने वाला है और वैन का भी बस लास्ट सेमेस्टर है। सोचती हूँ भाई जी से मशवरा करके कोई मुनासिब तारीख रख लेते हैं। चाची के भाई की अपनी कंसल्टिंग फर्म थी, जमा जमाया बिजनेस था और वैन और एनी दोनों की शादी इकट्ठे करेंगे। हुसैन ने सोच लिया है। एहसन भी यही कह रहे थे भाभी, हम आपके घर वाले भी तकाजा कर रहे हैं। ताई ने सर हिलाया और माह का मामला भी अगर निपटा लिया जाए। ताई ने मामा को देखा, उन्होंने भी तायद की। अल्लाह बच्चियों के नसीब अच्छे करे, इन्हें अपने घरों में आबाद खुश रखे। ताई की दुआ पर उन्होंने दिल में आमीन कहा और ये सब सुनते नवीन को यकीन हो गया कि माह का वक्त पूरा हो चुका। माह तो खुद परेशान थी। मामा ने अब तक इस सिलसिले में कोई बात ही नहीं की थी और वो कोई राय दे सकती या इतराज़ उठाती, और यही बात इसे डिप्रेस कर रही थी। हाय तेरा क्या बनेगा माह एहसन। और इस दिन तो हद हो गई जब शाम को दादा मरहूम के रिकॉर्ड पर वो गमज़दा गमगीन हीरोइन बनी सर मेज़ पे रखे सुन रही थी और नीर बहा रही थी। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाए कोई। और विन इसे तलाशती आई तो इस कदर नहूसत फैलाने पर दिल चाहा 2-4 जूते तो लगा ही दे, मगर खैर हमदर्दी भी महसूस हुई। उठो माहा, यूँ कब तक सोग मनाती रहोगी? दुनिया बुज़दिलों के साथ नहीं होती। जाओ और अपने हक़ के लिए लड़ो। इसने एक उदासी से इसे देखा, फिर गहरी सांस खारिज करते आह सिली। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत ज़ख्म सीने पर खाए हुए हैं। एक रिकॉर्ड क्या कम था जो तुम भी बजने लगी हो। इसकी बेसुरी आवाज़ को बमुश्किल हज़म करते इसने ज़बरदस्ती से उठाया। आओ बड़ी ज़बरदस्ती चटपटी चाट बनाइए, मिलकर खाते हैं और गम भगाते हैं। चाट के नाम पर इसने फिल वक्त सब गमों को पसे पोश डाला और उठ खड़ी हुई। फिर दौरान दावत सबके हिम्मत दिलाने पर हैदर से बराह रास्त बात करने पर राज़ी हुई। देखो दिल मजबूत रखना, डरना नहीं। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तुम्हारी सारी ज़िंदगी का मामला ही है। इसे तरह तरह से हौसला दिलासा देते उन्होंने हैदर के कमरे की तरफ धकेला। वो भी दिल कड़ा करके पहले मरहले के लिए तैयार हो गई। दरवाजे पर दस्तक देकर वो अंदर चली गई। कमरे में बहुत अंधेरा था, पर्दे गिरे हुए थे। इसे ज़रा डर लगा, कुछ सुझाई नहीं दे रहा था तो आगे बढ़कर अंदाज़न लाइट लगा ली।
टच की आवाज़ सारा कमरा पल भर में रोशन हो गया। बेड पर लेटे हैदर ने आंखों से हाथ हटाकर इस दखल दर माकूलात करने वाले को देखा। माहा को देखकर इसकी आंखें हैरत से पूरी खुल गईं। वो सरत से उठा और साइड पर रखी शर्ट पहनने लगा और माहा इस दौरान सख्त शर्मिंदा घबराई खड़ी थी। इसे कतन ख्याल नहीं आया कि वो इस वक्त आराम की हालत में होगा। शर्ट पहनने के बाद गैज़ व गज़ब से इसकी जानी पलटा। क्यों आई हो? इसका सवाल मुतवक्के था। अब ये तो नहीं कह सकती थी आपकी सूरत देखने को दिल मचले जा रहा था, या ये कि आपसे शादी नहीं कर सकती। ये कहते क्योंकि इसकी अपनी पोजीशन सख्त ऑकवर्ड लग रही थी, सो बहाना घड़ा। वो मैं चाय लेकर आई थी। चाय? अच्छा, कहाँ है वो चाय? इसने हस्बे आदत तंज़ी अंदाज में इसके खाली हाथों को देखा। नहीं, दरअसल मैं चाय का पूछने आई थी आपसे। ताई जान ने कहा है, अटक अटक कर कहती ज़रा रवानी से बोलने लगी। जवाबन वो कुछ कहे बगैर यूं ही इसे देखे गया। गहरी नींद से बेदार हुई आंखें लाल अंगारा हो रही थी। इसका दिल कांपने लगा। वो हिम्मत करके पलटी। मेरा ख्याल है अब मैं चलती हूँ, आप शायद चाय नहीं पीना चाहते। वो दरवाजे तक पहुँची जब पीछे से वो ठंडे लहजे में बोला, अगर आइंदा बगैर नॉक किए तुम यूँ मेरे कमरे में घुसी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और दूसरी बात, मेरे लिए 1 कप चाय और 2 डिस्प्रिन भिजवा देना। अब जाओ तुम। और वो क्या क्या मंसूबे बनाकर आई थी। जब नाकाम पलटी तो इन सब ने मिलकर वो हशर किया कि इसने सारी घबराहट लड़खड़ाहट को खैर बात कह दिया। घर में शादी की हल्की फुल्की तैयारियां शुरू हो गई थी। ऐनी तो खुशी से फूले न समा रही थी। दिल तो चाहता था कि खूब भंगड़े डाले। मामा ने भी अब हम्माद से ज़्यादा बातचीत करने पर पाबंदी लगा दी थी और वह अलबत्ता नॉर्मल थी। खुश तो माहा भी थी कि ख़ानदान की पहली पहली शादियां थी, मगर अपनी फ़िक्र इसे कम ही बेफिक्र होने देती। तीनों बज़ो ख़वातीन सरफराज मामों के यहाँ गई हुई थी। हमदान और यासिर मैच खेलने ग्राउंड में। मर्द हजरात अभी दफ्तर से नहीं लौटे थे। मैदान खाली था। सौरवीन के ज़रखेज़ दिमाग ने प्लान बी पर अमल दरामद के लिए इस वक्त को आइडियल करार दिया था। अब तैयारी शुरू की गई। हैदर की आमद में कुछ वक्त था। तुम ऐसा करो माहा, ये सूट पहनो। एनी ने ढूंढ ढांड का एक जर्कबर्ग सूट निकाला था। इसके लश्कारे देख कर इसकी आंखें चुंधिया गईं। ये माहा की चीख से मुशाबे आवाज़ निकली। ये मैरून सूट बतौर ईदी नवीन के लिए आया था। हाँ, क्या ख़राबी है इसमें? कमर पर हाथ रख कर मुड़ी। ख़राबी? इसमें खूबी कौन सी है? ना भाई, मैं कोई किसी शादी पर जा रही हूँ जो ऐसा भड़कीला चमकीला लिबास पहनूं। इसने साफ इनकार कर दिया। ज़्यादा नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हें अपना मुस्तकबिल अजीज़ है और हैदर से छुटकारा पाना है तो जैसा हम कहें इस पर अमल करो। और विन ने ज़ोर देकर समझाया, लेकिन ये तो इसने कुछ कहना चाहा। बस चुप, फजूल में कजबहसी किए जा रही हो। हैदर को डिसेंट सिंपल लड़कियां अच्छी लगती हैं। ये छमक छल्लो टाइप की लड़कियां सख्त जहर लगती हैं इसे। अगर तुम इससे बराह रास्त बात करके अपना इनकार नहीं पहुंचा सकती तो ख़ुद को ऐसा बनाकर पेश करो कि वो ख़ुद तुम्हें रिजेक्ट कर दे। और वे इनकी तकरीर में इसे लफ्ज़ डिसेंट और रिजेक्ट दोनों पर एतराज़ तो शदीद हुआ। सब्र के घूंट पी के रह गई। इस वक्त इनसे बिगाड़ भी नहीं सकती थी। वो सब इसे ड्रेसिंग स्टोर पर बिठाकर जुट गई और जब फ़खरिया मुस्कुराती हटी तो ख़ुद को आईने में देखकर इसकी चीख ही निकल गई। इतना डार्क और हैवी मेकअप, डार्क मैरून लिपस्टिक, आई शेडो, ब्लश ऑन, वो बिल्कुल किसी सर्कस की जोकर लग रही थी। बाल भी खोल कर शानों पर वो खेल दिए थे। बस हाथ में बाल थमाने की कसर रह गई थी। मैं क्या किसी मुकाबला चुड़ैल में जा रही हूँ जो इतना तेज़ मेकअप कर दिया तुम सब ने, ऊपर से ड्रेस और खुले बाल। वो जैसे रो देने को थी। जवाबन तीनों दानिश्वर बनकर इसे डांटने लगी और अफादियत पर लेक्चर देने लगी कि गाड़ी के मखसूस हॉर्न ने इन्हें मज़ीद पुरजोश कर दिया। लगता है हैदर आ गया है, चलो उठो और दिखा दो कि तुम किसी से कम नहीं। मगर और वैन में इस होलिये में इसके सामने कैसे जाऊंगी? बेचारगी आजिज़ी से बोली। उठो प्यारी बहन, हिम्मत पकड़ो। अगर आज ये सुनहरी मौका ज़ाया कर दिया तो ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। समझाते बुझाते वो इसे पहुँच तक लाने में कामयाब हो गई। फिर इसे छोड़कर खुद गायब। वो बेचैनी से हाथ मलती इसके आने का इंतज़ार कर रही थी। न जाने गाड़ी को ड्राइववे पर रोके वो क्या कर रहा था।
गाड़ी आई और हैदर के साथ कोई अजनबी सूरत देखकर इसके औसान ख़त्म हो गए। गाड़ी से बाहर आया। हैदर खुद मुजस्मा बना साकित खड़ा इस नमूने को पहचानने की कोशिश कर रहा था। अजनबी भी यकीनन शॉक्ड रह गया था। ऐसा हुस्न इसने शायद ज़िंदगी भर नहीं देखा था। इसके पसीने फूटने लगे। वो बदतमीज़ खुद तो गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गई हैं और मुझे इस अजीब सूरत-ए-हाल में छोड़ गई हैं। क्या करे और क्या ना करे। इसने अकल इस्तेमाल करते सलाम झाड़ा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। फर्मा बरदारी और ताबेदारी के रिकॉर्ड तोड़ते इसने सलाम किया और तेज़ी से दरवाजे की तरफ मुड़ी। भागने में ही आफियत थी मगर बेड़ा गर्क। एनी की हाई हिल लड़खड़ाई मगर ख़ुद को सहारा देने के लिए पीछे आते हैदर का बाजू थामा और शायद कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से पकड़ लिया। ज़ोर से ही पकड़ लिया था कि इसके लंबे नाखून इसके बाजुओं में खुप से गए। हैदर हो इस शी, वो दूसरा कदरे हैरत से पूछ रहा था। हैदर ने इसका हाथ सरहद से हटाया और मोड़ा। इसकी यूं बेदर्दी से हाथ झटकने पर दोबारा लड़खड़ाई जल्द ही संभल गई। वो कौन था? माहा ने इसे कभी नहीं देखा था। वो मंजर से फ़ौरन गायब हो गई। अंदर आकर इसे खुद पर भी सख्त गुस्सा आया। ये बेवकूफ़ाना हरकतें इन तीनों के कहने पर कर रही है। रात तक वो अपने कमरे में बंद रही। मामा के बहुत कहने पर वो खाने के लिए नहीं निकली। हैदर का कोई दोस्त आया था जिसने डिनर इधर ही किया था। इन सबको भी इसी सूरत-ए-हाल का अंदाज़ा न था। अब इसे तसल्ली दी जा रही थी। पापा खुद आए इसके कमरे में। वो तबीयत की ख़राबी का बहाना करके उन्हें भी टाल गई। इस हलाकों का सामना करना बड़ा दिल गुर्दे का काम था आज। मगर कब तक? अगला पूरा दिन भी बुझी बुझी सी रही। मामा भी फिक्रमंद हो गई। यूँ भी शुरू से ही बहुत नाजुक रही थी। वो इन्हें तसल्ली देकर बहलाने लगी। मगर रात को जब इसकी तलबी का पैगाम देकर हमदान मायनी खेजी से मुस्कुराता रफू चक्कर हुआ तब सब हकीकी मायनों में परेशान हो गई। वो ये पैगाम नज़रअंदाज करना चाहती थी मगर जब यासिर भी आया तो इसे मजबूरन जाना पड़ा। कमरा वही था और जज भी वही। ढीठ बनी रहना, खा नहीं जाएगा तुम्हें। एनी की नसीहत याद आई तो ज़रा हौसला बढ़ा। हूँ। हैदर कुर्सी से उठा और इसके मुकाबिल खड़ा हो गया। बगौर इसका जायज़ा लेते इसने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर पूछा, इस सब ड्रामे का मकसद क्या था? किस ड्रामे का? भीगी मुर्गी जैसी आवाज़ निकली तो ख़ुद पे गुस्सा आया। बहादुर बनो माहा, इसने ख़ुद को डांटा और हैदर को देखा जो जवाब तलब अंदाज से इसे देख रहा था। वही ड्रामा जो तुमने मेरे आने पर किया था कल पर जोर दिया गया। मगर मैं तो इस वक्त कोई ड्रामा नहीं देख रही थी। ढिठाई जिंदाबाद। इसने सोचा, मैं टीवी वाले ड्रामे की बात नहीं कर रहा। अब भी बड़े तहम्मुल सुकून से बोल रहा था। जी मैं समझी नहीं। इसने मासूमियत से आंखें पटपटाई। देखो माहा, मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। इसका जवाब देने लगा था और इसे जिच करती माहा की बहादुरी भी बस रुखसती चाहती थी कि इतने में फ़ौरन ऐड पहुंची। हैदर भाई, वो मामा बुला रही हैं इसे। एनी आगे बढ़ी। इसका फ़ोन आया, बहुत ज़रूरी। इसकी फ्रेंड की परनानी का इंतकाल हो गया और इस खुशी में कल एक फंक्शन है। इसी की तैयारी करनी है। अच्छा, खुदा हाफिज़। चलो माहा। और वह नैनी उल्टा सीधा बोलती अफरा तफरी में से हाँक कर ले गई। ऐसे कि वो जीनियस हिटलर भी हक्का बक्का खड़ा रह गया। मामला क्या था समझा ही नहीं। दोनों लड़कियों की डेट फिक्स होने वाली थी और घर में काम बहुत बढ़ गए थे। वो भी सब भूल भाल कर तैयारियों में लगी थी। सोच लिया था कि जो होगा देखा जाएगा। साफ इनकार करके पलटी। चची जान के कमरे में वो लेटी थी क्योंकि अभी इनके साथ इसने काफ़ी काम करवाया था। इतवार को हम्माद और सप्तैन की फैमिली डिनर पर इनवाइटेड थी। इसी दिन डेट फिक्स होनी थी। चची जान ने अभी से ख़रीदारी शुरू कर रखी थी। अभी वो उन चीज़ों की लिस्ट बनाती और जो मज़ीद आना है उनकी लिस्ट बनाकर फारिग हुई थी। नवीन ताई जी के साथ लगी हुई थी। एनी और अरवैन दोनों अपने बूथे संभालने पार्लर गई हुई थी। हालांकि नवीन ने कहा भी, हमाद इस चेहरे को रोज़ाना 100 बार देखता है। एवी फजूल में पैसे खर्च कर रही हो खुद पर। मगर आजकल वो कम ही किसी बात का मानती थी। मामा इसे तलाश करती अंदर आई। कितनी आवाज़ें दे डाली, तुम यहाँ छुपी बैठी हो। वो इन्हें देखकर उठकर बैठ गई। कोई काम था आपको? काम तो नहीं, एक ज़रूरी बात करनी है तुमसे।
इसके करीब बैठते उन्होंने मोहब्बत से इसे देखा। इनके कंधे से सर टिका गई। जी बोलिए, सुन रही हूँ। बेटियाँ कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। देखो तो ज़रा, कल की बात है जब तुम और एनी इतनी इतनी सी मेरी गोद में थी, और आज उनकी आंखों में नमी चमकी, बेख्तियार उनके गेंदबाजों का हल्का बना गई। उदास मत हो मामा, मैं तो होंगी ना आपके पास। हाँ, अब लगता है तुम मेरे पास, मेरे करीब हमेशा रह सकोगी। उनकी बात पर वो नासमझी से इन्हें देखने लगी। बात यह है माहा कि हैदर के एक फ्रेंड का प्रपोज़ल आने वाला था तुम्हारे लिए। तुम्हें अगर याद हो तो अकबर भाई के घर मिलाद के फंक्शन में हमारी मुलाकात तुम्हारे पापा के फ्रेंड की फैमिली से हुई थी। उन्होंने याद दिलाया, इसे भी याद आ गया। वो डिसेंट सी आंटी जो लंदन से आई थी, उनका बेटा होता है लंदन में, बिजनेस करता है। बहुत अच्छी फैमिली थी। न जाने क्यों भाभी ने इन्हें इनकार कर दिया। हालांकि तुम्हारे पापा ने भाभी के कहने पर रजामंदी दे दी थी, मगर चूँकि कुछ फाइनल नहीं हुआ था सो तुमसे जिक्र ज़रूरी नहीं समझा। ओह अच्छा, तो वो मीटिंग्स इस सिलसिले में थी, मगर ताई ने इनकार क्यों कर दिया? वो समझ गई इन्हें हैदर को लेकर गलत फहमी हुई थी। जहाँ इसने सुख का सांस लिया वहाँ अफसोस भी हुआ कि लंदन पलट को मना क्यों कर दिया गया। और मामा बता रही थी, मगर अब भाभी ने हैदर के लिए बात की है और तुम्हारे पापा और हम सब इस रिश्ते पर बहुत खुश हैं। तुम बताओ, तुम क्या कहती हो? इसका दिमाग भग से उड़ गया। मामा, हैदर प्लीज़ मामा। इससे तो बात ही पूरी नहीं हो रही थी। इसके रंग बदलते चेहरे को देखती मामा ज़रा परेशान हो गई। क्या हुआ माहा, क्या तुम राज़ी नहीं हो? तुम्हारे ताया ताई ने बड़े मान दावे से मांगा है तुम्हें, और सच पूछो तो मेरी भी शदीद ख्वाहिश थी कि मेरी एक बेटी मेरी नज़रों के सामने रहे। फिर हैदर बहुत बेहतरीन लड़का है, देखा भाला, सूरत सीरत दोनों में बेमिसाल। मामा इसकी मदह सराई में मसरूफ़ थी। अगर सब राज़ी हैं तो इससे पूछकर या बताकर कौन सी फॉर्मेलिटी निभाई जा रही थी। मामा, मैं इस रिश्ते पर राज़ी नहीं हूँ। हैदर मुझसे बहुत मुख्तलिफ है। वो मशरिक़ है तो मैं मगरिब। हम दोनों का मिजाज सोच कुछ भी नहीं मिलती मामा। इसके इस कदर वाज़े जवाब पर मामा चुप होकर रह गई। वो इनके बोलने की मुंतज़िर इन्हें देखी जा रही थी, जो सख्त मायूस नज़र आ रही थी। तुम एक दफ़ा फिर से सोच लो, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। वक्त लेना है तो ले लो। मगर यूँ इन्हें शायद माहा से साफ इनकार की उम्मीद ना थी। कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, मगर इनके बुझे चेहरे को देखकर खामोशी रही। रात जब ये बात इसने इन चारों को बताई तो सब चौंक गई। ये दोस्त वही तो नहीं जो डिनर पर भी आए थे? जब माहा जोकर मतलब तैयार हुई थी, नवीन की दूर की कौड़ी लाई और फिर तस्दीक भी हो गई। मुझे लगता है तुम्हारा इतना बोंगा हुलिया इसे पसंद नहीं आया होगा, इसीलिए भाग लिया। नवीन ने तज्जिया किया, पर इसे वो हैंडसम लड़का याद आ गया जो हैदर की गाड़ी से निकला था। हाय मेरे नसीब, कितना हैंडसम था वो। कम अज़ कम इस खड़ूस सड़ू हैदर से तो 100 गुना अच्छा। इसका अफसोस दो चंद हो गया। इसके इनकार की भनक हैदर को भी पड़ गई थी। इतवार को चूँकि तारीख तय होनी थी सो काम भी ज़्यादा था, वो भी मसरूफ़ थी। दोनों दुल्हनें तो हाथ पर हाथ धरे बैठी मज़े कर रही थी। वो आते जाते इन्हें जिता रही थी। दोनों शाहाना अंदाज में मुस्कुराई जा रही थी। मामा जान, माँ जान, एक चाय का कप स्टडी में पहुंचा दो। चची जी ने आवाज़ लगाई। वो फ्लास्क से चाय एक कप में डालकर स्टडी में आई। वहाँ कोई नहीं था, अलबत्ता लैपटॉप ऑन था, यूँ जैसे कोई काम करते करते छोड़ गया हो। इसने कप एहतियात से टेबल पर रखा और जाने को मुड़ी। जब वही सीडीज़ का पैकेट इसे वहाँ नज़र आया, इसका तजस्सुस जाग उठा। आगे बढ़कर इसने एक सीडी निकाल कर देखा। सिल्वर कलर की चमकती सीडी बज़ाहिर आम सी लग रही थी। कुछ सोचकर इसने लैपटॉप में वो सीडी डाली। फाइल मीटिंग में फिर जाकर इसे खोला, पर इनमें शायद सिर्फ डॉक्यूमेंट्स है। इसने दूसरी सीडी भी लगाई, मगर कुछ ना मिला। अचानक एक हाथ पीछे से आया था और इसके हाथ में थामी सीडी को पकड़ लिया। वो डर कर मुड़ी। वो हैदर था। वो शायद काम करते करते उठ कर गया था। वो खज्जल सी हो गई। देख ली सीडीज़, कर ली तस्दीक कि ये कोई ऐसी वैसी सीडीज़ नहीं है। वो क्या जिताना चाह रहा था वो समझकर मज़ीद खिसिया गई। यानी इसने सारी गुफ्तगू सुनी थी। कमाल है, इसने कुछ कहा नहीं। आप गलत समझ रहे हैं, मेरा वो मतलब नहीं था। अब मज़ीद क्या कहती? मैं सब मतलब अच्छी तरह समझता हूँ। तुम ये बताओ, इनकार क्यों कर रही हो? वो यूँ अचानक बराह रास्त पूछ भी सकता है। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था।
اب اس کے منہ پر کیسے اس کی برائیاں بتا سکتی تھی، سو جلدی سے جانے کو پر تولنے لگی۔ وہ مجھے بہت کام کرنا ہے، مجھے معلوم ہے تم کتنی مصروف ہو۔ اس وقت جو پوچھا ہے اس کا جواب بھی بہت ضروری ہے۔ ہاں بتاؤ، وجہ کیا ہے؟ چیئر پر اطمینان سے بیٹھتے اس نے چائے کا کپ اٹھا کر گھونٹ لیا، پھر اس کے رنگ اڑے چہرے کو بغور دیکھنے لگا۔ اس کا انداز اسے مزید بکھلائی دے رہا تھا۔ یوں تو محترمہ کی زبان خوب چلتی ہے، اس وقت تو لگتا ہے فرشتے بھی کوچ کر گئے ہوں جیسے اس نے سوچا تھا۔ یہ سب تمہاری مرضی تھی نا، تو اب یوں نخرے کیوں کر رہی ہو؟ میری مرضی؟ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ ہر وقت مجھے متوجہ کرنے کو تم کیا کیا جتن کرتی رہتی تھی، میرے حواسوں پر سوار رہنے کے لیے ڈرامے بھی خوب کیے تم نے۔ اب جب سب تمہاری خواہش کے مطابق ہو رہا ہے، پھر یہ انکار کیوں؟ اطمینان سے چائے پیتے اس کا لہجہ سے آگ لگا گیا۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہ میری مرضی ہے؟ کیسے اتنے دعوے سے کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ کو متوجہ کرنے کے لیے ڈرامے کرتی تھی، آپ کی توجہ حاصل کرنے کو؟ اس نے کمال اطمینان سے اس کی بات کاٹ دی۔ تو پھر اس سب کا مقصد کیا تھا؟ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر پھر اسے بولنے سے روک دیا۔ اگر میں غلط سمجھ رہا ہوں تو جہانگیر کے سامنے تم اس قدر آکورڈ ہولیے میں کیوں آئی تھی؟ وہ تمہیں ہی دیکھنے آیا تھا، مگر تمہاری بدحواسیاں، اتنا چیپ حلیہ دیکھ کر اس نے مجھ سے صاف کہہ دیا کہ اسے ایسی چھمک چھلو میک اپ زیادہ لڑکیوں سے الرجی ہے۔ سوبر اور ڈیسنٹ لڑکیوں کو پسند کرتا ہے۔ تم اس کے معیار سے کہیں آگے کی تھی۔ حالانکہ اس رشتے پر میں نے سب کو راضی کر لیا تھا، بات تقریباً فائنل ہونے ہی والی تھی، مگر اب کیا کیا جائے، تمہاری پرسنالٹی نے سب کچھ بگاڑ دیا۔ میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ چٹک گئی۔ جناب کس خوش فہمی میں ہے؟ پھر کیا تھا تمہارا میرے لیے سجنا سنورنا؟ حالانکہ تم جانتی ہو مجھے فضول حرکتیں قطعی پسند نہیں۔ اس نے باقی ماندہ چائے ایک گھونٹ میں ختم کر کے کپ رکھا، پھر قدرے معنی خیزی سے اس کے زد چھوتے چہرے کو دیکھ کر لطف اٹھایا۔ اس نے بھی مجھے کتنا تنگ کر رکھا تھا۔ اب چھپاؤ مت، میں سب جان گیا ہوں، مگر یاد رکھنا مجھے لڑکیوں کی یہ آزاد روی نہیں پسند۔ تو میری کزن ہو، میرے گھر کی عزت، اس لیے میں نے فوراً آگے بڑھ کر تمہارا ہاتھ مانگا ہے، تمہاری مشکل آسان کی ہے، تاکہ کل کو تمہارے بارے میں کوئی بات نہ کر سکے۔ سب یہی سمجھتے ہیں کہ رشتہ میری مرضی سے طے ہو رہا ہے، مگر میں جانتا ہوں حقیقت کیا ہے۔ تو فکر مت کرو، تمہارا راز ہمیشہ راز ہی رہے گا۔ آفٹر آل میں آفندی ہاؤس کا بڑا بیٹا ہوں، اس کی عزت میں نہیں سنبھال لوں گا تو کون سنبھالے گا؟ ماہا کا فشار خون بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ کس قدر خباثت سے یہ سب کہہ رہا تھا۔ وہ خوش فہمی کا شکار اکڑو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس پر فدا ہوں۔ اوف میرے خدا، مارے غم و بے بسی کے اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ ہاں یہ بھی سمجھ لینا کہ میں چھپ چھپا کر کچھ بھی کرنے کا قائل نہیں ہوں، ہر کام ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں۔ یہ CDs بہت ضروری ڈاکیومنٹس کی تھیں، اس لیے ان کو احتیاط سے رکھا تھا۔ CDs اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی گئیں۔ وہ تو صدمے سے بت بنی سے دیکھی جا رہی تھی۔ جو حرکتیں اسے متنفر کرنے کو کی تھیں وہ تو الٹا اس کے گلے پڑ گئیں۔ وہ مغرور اس کے عوض اسے اپنا کر احسان کا ٹوکرا اس کے سر پہ لاد رہا تھا تاکہ ساری زندگی اس کے بوجھ سے دبی رہے۔ ہائے یہ کیا ہو گیا تھا؟ لگتا ہے شادی مرگ ہو گیا تم کو۔ ہونا بھی چاہیے، مجھ جیسا لائف پارٹنر ہر لڑکی کا خواب ہوتا تھا، اور تمہیں تو بن مانگے تمہاری چاہت مل رہی ہے۔ اس کی خود پسندی اسے زور کا دھچکا لگا اور ہوش آیا۔ یہ آپ کی غلط فہمی، خوش فہمی، خود ستائی ہے، میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا۔ آپ خود سے نہ جانے کیا کیا افسانے بنائے جا رہے ہیں۔ اچھی مشرقی لڑکیاں یوں ہی کہتی ہیں، چلو کچھ تو مشرقیتوں میں زندہ ہے۔ اس نے جیسے خراج تحسین پیش کیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ جھنجلانے لگی۔ آخر کیسے سے یقین دلائے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ یوں بولا جیسے بچوں کی کسی بچگانہ بات پر بڑے پچکارتے ہیں۔ آپ مجھے کچھ بولنے دیں گے؟ وہ ضد ہو رہی تھی، رونا الگ آ رہا تھا۔ ہائے یوں بھی تقدیر پلٹا کھا سکتی ہے۔ بولنا، ضرور بولنا، بڑی امی کے سامنے۔ اب یہ انکار تمہارے منہ سے نہ سنوں۔ اچھی لڑکیوں کی طرح شرافت سے بڑوں کے فیصلے پر سر جھکا دینا، ورنہ دوسرا آپشن بھی ہے۔ عابد کا رشتہ بھی آیا ہوا ہے، اور میں چاہوں تو سب کو اس پر بھی راضی کر سکتا ہوں۔ اب جاؤ، قدرے رکھائی سے کہتا وہ وارننگ دیکھ کر لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اور ماہا، اسے تو دن میں بھی تارے نظر آنے لگے تھے۔ لڑکھڑاتے قدموں سے وہ باہر نکلتی، اس کی وارننگ کو سوچ رہی تھی اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔
وہ پڑھا لکھا جاہل عابد جس کی 5 فٹ 2 انچ ہائٹ پر وہ خاندان بھر میں کوڈو کے نام سے مشہور تھا، اور جس کی گھنی مونچھیں دیکھ کر جنگل کا خیال آتا تھا، چمکتا سر گنج پن کا شکار تھا، اور ہر لڑکی کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو جانا ہابی۔ ہائے میری سکھیو، بیڑا غرق ہو تم لوگوں کا، تمہارے الٹے سیدھے مشوروں نے مجھے کس حال میں پہنچا دیا ہے۔ اللہ کرے ہم ماں تمہیں دیکھ کر پہچاننے سے انکار کر دے، اور وین شادی والے دن تمہیں موشن لگ جائیں، اور سب تین کو کرونا ہو جائے، ایک دوسرے کو دور دور سے دیکھو ترسو۔ وہ بد دعائیں دیتی بے تحاشا روئے جا رہی تھی، وہ تینوں ناسمجھی سے اس کے آنسو دیکھی جا رہی تھی۔ دل میں کیا کیا کہا جا رہا تھا وہ تو سیکرٹ تھا نا، کہ زبان پر لا کر ان کی مور سپورٹ سے ہاتھ نہیں دھو سکتی تھی، یہ تو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا تھا۔ اور جب بات کھلی تو نوین سے ہنسی روکنا دشوار ہو گیا، جبکہ وہ دونوں اس کے غم میں برابر کی شریک تسلی دیے جا رہی تھی، اور اسٹڈی میں لیپ ٹاپ کو بھولے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے حیدر افندی ساری صورتحال کو سوچتا لطف اندوز ہو رہا تھا، اس کے لٹکے ہوئے سرخ چہرے کو تصور میں لاتا مسکراتے ہوئے سوچے جا رہا تھا۔ اس دن اس قدر جلووں نے حیدر افندی کی آنکھیں چکا چون کر دی تھی، تو جہانگیر کی بھی اس نازک سی لڑکی میں دلچسپی محسوس کر کے نہ جانے کیوں برا لگا تھا، گو کہ وہ آیا ہی اسے دیکھنا تھا، مگر اس کا دل چاہا کہ وہ سارے منظر سے ماہا کو غائب کرتے۔ ڈارک میرون کپڑوں میں اس کی انتہائی سفید رنگت چمک رہی تھی، گو کہ اتنا ہیوی میک اپ اور کھلے بالوں کو دیکھتا وہ بھی حیرت زدہ رہ گیا تھا، مگر جب اس نے خود کو سنبھالنے کے لیے اس کا سہارا لیا تو اتنے پاس سے اس کی وہ سہمی آنکھیں اسے عجیب سے احساسات سے دوچار کر گئیں۔ پھر بہت سوچنے کے بعد اس نے جہانگیر والے رشتے پر امی سے بات کی اور اپنی خواہش کا اظہار بھی کیا۔ وہ بے پایاں خوش ہو گئی، اس سے بڑھ کر کہ کون ہو سکتا تھا، سب معاملات آسانی سے طے ہو گئے۔ مگر ماہا کے انکارنے سے دھچکا پہنچائے، پھر نوین کو رازدار بنا کر اس نے سب کچھ اگلوا لیا۔ وہ مان گیا تھا کہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں ٹیڑھی سے ہی نکلے گا، سب کچھ ویسے ہی ہوا جو اس نے سوچا تھا۔ ماہا کو اپنی باتوں میں پھنساتا، وہ اس کے تاثرات کو دیکھتا، اپنی مسکراہٹ روک رہا تھا، جانتا تھا تیر نشانے پر بیٹھا ہے اور نتائج بھی من پسند آئیں گے، اب بس انتظار تھا تو اس کی ہاں کا۔ ویسے وہ اب تک بے یقین تھا کہ اس دن وہ اسے کیسے کسی پری، کسی مس ورلڈ سے کم نہیں لگ رہی تھی، شاید کیوپٹ کا تیر یوں ہی چلتا ہے، اور وہ بے وقوف شاید کبھی نہ جان سکے گی کہ اس سرکس کے جوکر والی حلیے میں وہ حیدر افندی جیسے بندے کو اتنا بھائی تھی کہ سادہ اور سوبر لڑکیوں کو پسند کرنے والا حیدر افندی تیر محبت کا شکار ہو گیا اور اپنے دام میں آپ پھنس گیا تھا۔ یہ ناول اپنے اختتام تک پہنچا، اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ۔